السلام علیکم فرینڈز، میں عثمان آپ سب کا کتاب محل میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ آج میں کہانی جنات کا غلام قسط نمبر 31 کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں نے کہا، سرکار بتا دیجئے نا مجھے، میں جاننا چاہتا ہوں کہ ابلیس کی اولاد ہمارے کن کن معمولات پر مامور ہے۔ شیطان انسانوں پر کس کس طرح سے سواری ڈالتا ہے، اگر انسان اس کا ادراک کرتے تو وہ بشیرت کے تقاضے پورے کر سکتا ہے۔ بابا جی کہنے لگے، ہم جنات انسانوں سے ڈرتے ہیں، کیا تم جانتے ہو کہ ہم انسانوں سے کیوں ڈرتے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیا سوال کروں۔ محض یہ کہا، جی، اس کی بنیادی وجہ انسان کا اشرف المخلوقات کے درجے پر فائز ہونا ہے، مگر کیا آپ ہر انسان سے ڈرتے ہیں؟ اس بار میں سوال کرنے سے نہ گھبرایا۔ دراصل انسان نے خود اپنی فضیلت کھو دی ہے، اس لیے اب جنات ہر انسان سے نہیں ڈرتے، جنات علم و فضل میں جگتا انسانوں سے ہی ڈرتے ہیں۔ بابا جی منطق کی ایک بات سمجھاتے ہوئے کہنے لگے، شیطان بدی کا گماشتہ ہے، انسان کو نفس کا غلام بنا کر اس نے انسانوں کو علمی فضیلت کے درجات سے گرا دیا ہے۔ جب سے انسان نے احکامات الہی کو چھوڑ کر گمراہی کے راستے اور فسق و فجور کی عادات کا انتخاب کیا ہے، وہ کمزور ہو گیا ہے، اور یہی بشری کمزوری جنات کو ان پر غالب ہونے میں مدد دیتی ہے۔ بابا جی کے ساتھ اس روز خوب نشست رہی۔ انہوں نے سنیارے بھٹی کے گھر سے چڑیلوں کی پگی اٹھا دی تھی۔ 80 تولے سونا لینے کے باوجود ان کا تقاضا تھا کہ وہ کچھ عرصے بعد دوبارہ اس گھر پر آ جائیں گی۔ بابا جی نے ان کی یہ بات نہیں مانی، ساری رات شور شرابہ رہا۔ بالآخر چڑیلیں اس گھر سے رخصت ہو گئیں، مگر جاتے جاتے انہوں نے انجیر کے درخت کی سب سے موٹی اور پھلدار شاخ کو توڑ دیا۔ فجر کا وقت ہو گیا تھا، ہم نے اس وقت نماز پڑھی۔ نماز کے بعد بابا جی کے جنات نے محفل سماع کا اہتمام کیا۔ ریاض شاہ نے بابا جی کی اجازت سے کمرے میں زیرو کا بلب روشن کر دیا تھا اور سب کو آنکھیں کھولنے کی اجازت بھی دے دی تھی۔ بابا جی ایک کونے میں بڑے صوفے پر بیٹھے تھے، ان کے گرد جنات کا ایک گروہ کھڑا تھا۔ سبھی نے سفید احرام جیسا لباس پہنا ہوا تھا، سروں پر سفید براق پگڑ تھے جو پیشانی سے آگے تک جھکے ہوئے تھے۔ سنیارا بھٹی اور اس کا بیٹا یہ منظر دیکھ کر اش اش کر اٹھے۔ محفل سماع اپنے جوبن پر تھی کہ غازی کی آواز سنائی دی، سرکار میں تحفے لے آؤں؟ آ جاؤ غازی، بابا جی نے اسے اجازت دی۔ ہماری نظروں کے سامنے غازی انسانی شکل میں نمودار ہوا۔ اس نے ہاتھوں میں ایک بڑا سا تھال اٹھا رکھا تھا جس میں آب زمزم کی بوتلیں رکھی ہوئی تھیں۔ سرخ پتھروں والی تسبیح اور سنہرے تاروں والی 2 ٹوپیاں بھی ساتھ رکھی تھیں۔ بیٹا، ان سب میں مبارک تحفے تقسیم کر دو۔ بابا جی نے ریاض شاہ کو اشارہ کیا تو اس نے آب زمزم گھر کے افراد میں تقسیم کر دیا۔ بھٹی، یہ ایک ٹوپی تمہارے لیے ہے۔ انہوں نے تھال میں سے ٹوپی اٹھائی تو سنہرا بھٹی تیزی سے ان کی طرف بڑھا۔ اس نے عقیدت و احترام سے بابا جی کا ہاتھ چوم لیا۔ بابا جی کے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ ابھری۔ سنہرے بھٹی نے اپنا سر ان کے سامنے جھکا دیا۔ بابا جی نے ٹوپی اس کے سر پر اڑا دی اور کہا، بھٹی، اپنی آنکھ اور دل کی حیا کا خیال رکھنا، ہمارے اس بیٹے کو کبھی ناراض نہ کرنا، یہ ہے تو ہم ہیں۔ انہوں نے ریاض شاہ کی طرف اشارہ کیا۔ ضرور رکھوں گا جی، میری توبہ، اب میری آنکھ کبھی میلی نہیں ہوگی۔ یہ تسبیح تمہاری بیوی کے لیے۔ بابا جی نے سنہرے بھٹی کی بیوی کو بلا کر تسبیح دی اور اس کے سر پر شفقت بھرا پیار دے کر کہا، تو ہماری بیٹی ہے، ہمارا یہ تحفہ تمہیں ہماری یاد دلاتا رہے گا۔ بیٹی، میری ایک بات یاد رکھنا، اللہ کا ذکر سب سے افضل ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتی رہا کرو، سورہ کوثر بکثرت پڑھا کرو، اللہ تمہارے مسائل دور فرمائے، آمین۔ بابا جی نے اسے نصیحت فرمائی تو وہ عقیدت و احترام کے ساتھ الٹے قدموں چلتی ہوئی واپس اپنی نشست پر چلی گئی۔ یہ ٹوپی ہمارے بیٹے کے لیے ہے۔ بابا جی نے تبسم ریز نظروں سے میری طرف دیکھا اور کہا، یہ لو، یہ تم پہن لو۔ میرے لیے؟ میں نے چونک کر پوچھا، کیوں، ہم تمہیں تحفہ نہیں دے سکتے؟ بابا جی ہنس دیے۔ میں بھی جھکتا اداب خاطر ملحوظ رکھتا ہوا ان کے پاس گیا، ان کا ہاتھ چوما۔ بابا جی نے ٹوپی میرے سر پر پہنا کر کہا، کتنی جچتی ہے تمہارے سر پر، سرخ داڑھی، سفید چہرہ
शफाफ आंखें। मेरे बच्चे, ये टोपी तुम्हारे सर पर पहनाई है तो लगता है तो इस सरजमीन के बाशिंदे नहीं हो, ईरानी नस्ल लगते हो। मुझे कुछ समझ नहीं आई कि बाबा जी क्या कहना चाह रहे हैं। मैंने रियाज शाह की तरफ देखा तो वो तबस्सुम रेज अंदाज में कहने लगा, बाबा जी की बात मुश्किल लगती है, समझ नहीं आ रही। सरकार के कहने का मतलब है इस टोपी की लाज रखना, ये तुम्हारे सर पर दस्तारे फजीलत के मुतरादिफ है, इसको हर वक्त सर पर रखना तुम्हारे सर पर खूब जचती है। इंशाल्लाह मैं इसे सर से नहीं उतारूंगा। इस असना में गाजी की चहकार सुनाई दी। अंगूर खाओगे भैया? अंगूर? और इस मौसम में? मैंने हंसते हुए कहा, अगर कहो तो हाजिर कर दूं, अगर मिल जाए तो जरूर खाऊंगा, मैंने जवाबन कहा। मेरे मुंह से ये निकलने की देर थी कि गाजी ने एक दूसरा बड़ा थाल हमारे सामने कर दिया। अंगूर के भारी रस भरे और तरोताजा खोशे देखकर मैं ही क्या, सुनियारे भट्टी के अहले खाना भी हैरान रह गए। हम सब ने मिलकर अंगूर खाए, इंतहाई शीरीं और लजीज अंगूर और फिर बेमौसमी फल। मैंने गाजी से पूछा, कहाँ से लाए हो? यमन से लेकर आया हूँ, वह हंसते हुए बोला। कुछ और चाहिए हो तो ले आऊं? हाँ, मुझे एक अकीक यमनी ला दो। गाजी ने मेरी फरमाइश सुनी तो हंसने लगा। मैंने सोचा था कि कोई बड़ी फरमाइश करोगे, खैर ये लो। गाजी ने पलक झपकने में ही अकीक यमनी एक अंगूठी में सजा हुआ पेश कर दिया। लो, पहनकर देख लो। मैंने अंगूठी दाएं हाथ की छोटी उंगली में पहनी तो बिल्कुल फिट आ गई, ऐसे लगा जैसे ये मेरे लिए ही बनी है। मैं अंगूठी और अकीक को बार बार देखने लगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने गाजी का शुक्रिया अदा किया तो वो हाथ न जाकर बोला, बस खाली और सूखा शुक्रिया नहीं चलेगा। उसकी बात सुनकर सुनहरे भट्टी की बीवी बोली, हाँ भाई, इसको खाली तो नहीं टरखाना चाहिए। क्या चाहिए तुम्हें? मैंने गाजी से पूछा तो वो मेरे कान के करीब मुंह करके कहने लगा, मैंने फिल्म देखनी है। मेरी हंसी छूट गई। गाजी, तुम फिल्म देखोगे? आहिस्ता बोलो भैया, बाबा जी सरकार ने सुन लिया तो मारेंगे। गाजी मिनमिनाकर बोला, कौन सी फिल्म देखनी है? मैंने पूछा। जो मर्जी दिखा दो, उसने कहा। ये गाजी बाज नहीं आएगा। बाबा जी हमारी सरगोशियों की जुबान समझकर बोले, ऐसे ही तुम्हारा दिमाग चाट रहा है, बड़ा हरामखोर है, फिल्म के बहाने तुम्हें किसी मुसीबत में मुब्तला कर देगा। सरकार, मैं। गाजी कुछ कहने लगा था कि बाबा जी ने इसे डांट दिया। वो मुंह बनाकर पीछे हट गया। अच्छा बच्चों, अब हमारी रुखसत होने का वक्त हो गया है। बाबा जी ने इजाजत तलब की और रियाज शाह से अपने मखसूस जुबान में कुछ कहने लगे। रियाज शाह ने जल्दी से जीरो का बल्ब बंद कर दिया। अंधेरा होते ही बाबा जी की आवाज सुनाई दी, अल्लाह हाफिज मेरे बच्चों। हम सब ने कहा अल्लाह हाफिज। चंद सानिये तक अंधेरा रहा, फिर रियाज शाह ने ट्यूबलाइट रोशन कर दी और ज़ेरे लब कुछ पढ़ते हुए कमरे के कोने कोने में फूंके मारने लगा। वो दूसरे कमरे में भी गया और चंद मिनट बाद वापस आकर कहने लगा, सुबह जब दुकानें खुल जाएं तो सबसे पहले मुझे ये चीजें मंगवा दें, आपके घर की गलाजत साफ करनी है। उसने सफेद चिट सुनहरे भट्टी की तरफ बढ़ा दी। घर तो हमारा साफ है शाह साहब, वो बोला। मैं इस सफाई की बात नहीं कर रहा। उन बदरूहों ने एक अरसे तक इस घर में डेरे डाले रखे थे, इनकी गंदगी को यहाँ से साफ करना है, इसलिए ये कुछ चीजें मुझे लाजमी चाहिए। उस लिस्ट में कनीर के फूल, देसी घी, लोबान, जायफल, मिसरी और सोने चांदी के 2 तोले का तावीज और जाफरान था। जब तक तावीज और नक्श बनाकर घर में धूनी नहीं देंगे, इनके सहरी असरात मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं होंगे। ये सामान कितने का होगा? सुनहरे भट्टी ने पूछा। और ये कनीर के फूल कहाँ से मिलेंगे? छोटा सा कस्बा है, मुझे नहीं लगता ये सारा सामान यहाँ से मिल जाएगा। 15-20 हजार का सामान होगा। आप खुद नहीं ला सकते तो पैसे मुझे दे दें, मैं गाजी से कहकर मंगवा दूंगा। रियाज शाह ने कहा, मैं अब कुछ देर आराम करूंगा, दोपहर तक ये सामान आ गया तो मैं धूनी और अमल करके चला जाऊंगा, दोबारा मेरा आना मुश्किल होगा। मैंने महसूस किया कि बाबा जी की रुखसत होते ही रियाज शाह का लहजा खासा रूखा हो गया था। सुनियारा भट्टी अपने बेटे और बीवी का मुंह तकने लगा। वो शीशो पंज में मुब्तला हो गया था कि ये क्या माजरा है। पहले बाबा जी के कहने पर उसने 80 तोले सोना दिया, लाखों रुपए हवा बुर्द हो गए थे, और अब ये 20 हजार का सामान मंगवा रहे हैं। मुझे बिस्तर दे दें, मुझे अब आराम करना है। पैसों का बंदोबस्त हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। रियाज शाह का चेहरा थकान से भरा हुआ था, आंखें सुर्ख हो रही थी और लहजा भरा गया था।
लगता था इसे फौरी आराम मुहैया ना किया गया तो उसकी हालत बिगड़ जाएगी। सुनहरे भट्टी की बीवी ने इन्हें साथ वाले कमरे में नया बिस्तर बिछा कर दिया। रियाज शाह ने मुझे साथ चलने का इशारा किया। वो खुद बिस्तर पर दराज हो गया और मुझे कहने लगा, यार मेरे सर पर जरा मालिश कर दो। मैं उसकी कैफियत समझता था। उसने अपने थैले से तेल की शीशी निकाली। मैं उसके घने और घुंघराले बालों में तेल उंडेल कर मालिश करता रहा। कुछ देर बाद ही वो सो गया। मुझे अभी तक नींद नहीं आ रही थी। मैं दूसरे कमरे में चला गया। सुनहरा भट्टी अपना सर थाम कर बैठा हुआ था। मुझे बताओ मैं क्या करूं? मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। अल्लाह का शुक्र करो जी, आप पैसा खर्च करके बर्बाद नहीं हो रहे, अपनी और अपने घर वालों की जान का सदका उतार रहे हो। उसकी बीवी उसे समझा रही थी। तेरा तो दिमाग खराब हो गया है, तू मुझे बर्बाद करके सुकून लेगी। तू जानती है 80 तोले सोना कितने का आता है? और अब ये 20,000। मैं तो कहता हूँ ये सारा ढोंग था। बाबा जी अल्लाह के नेक बुजुर्ग जिन हैं, तो उन्होंने इतना ज्यादा पैसा क्यों खर्च करा दिया? अल्लाह वाले ऐसा नहीं करते। भली मांस तू नहीं समझ सकती। तौबा तौबा करें जी, लगता है आप पर अभी तक उन चुड़ैलों का नशा तारी है। ऐसी गुमराहों जैसी बातें कर रहे हैं। तौबा करें, बाबा जी की शान में गुस्ताखी ना करें। उन्होंने जो किया हक सच के साथ किया। उन्होंने सोना चांदी लेकर क्या करना था? मैं कब कहता हूँ उन्होंने सोना लिया होगा? मुझे यकीन है ये सारा सोना और रकम रियाज शाह। सुनहरे भट्टी के मुंह पर दिल की बात आने लगी तो उसकी बीवी ने जल्दी से उसका मुंह बंद कर दिया। खुदा के लिए ऐसी बात ना करें। शाह साहब ने सुना तो नाराज होंगे। आपको याद है बाबा जी सरकार ने कहा था कि हमारे और तुम्हारे दरमियान राब्ता रियाज शाह की वजह से है। वो इसे अपना बेटा कहते हैं। तुमने देखा नहीं रात भर कितनी खौफनाक चुड़ैलें और जिन्नात हमारे सामने आते जाते रहे हैं। अगर शाह साहब नाराज हो गए तो ये सारी चीजें वापस आ जाएंगी और फिर अल्लाह ना करे, बस आप जल्दी से बंदोबस्त करें। सुनहरा भट्टी जिद हो गया था। मुझे देखा तो खामोश हो गया। मैंने इसे तजवीज दी, भट्टी साहब सोने चांदी का तावीज तो आप खुद बना सकते हैं, बाकी जितनी रकम है वो रियाज शाह को दे दें, वो खुद बंदोबस्त कर लेंगे। उसने मुझे तो कुछ ना कहा। दोपहर तक उसने सोने चांदी का तावीज बना दिया था और बाकी रकम जो तकरीबन 10,000 रुपए बनती थी उसने मुझे देने की कोशिश की और कहा ये शाह साहब को दे देना। मैंने हाथ पीछे कर लिया। आप खुद इन्हें दें, मैं ऐसे पैसों को हाथ नहीं लगा सकता। आप उनके साथी नहीं हैं? मैं बाबा जी का मुरीद हूँ। मैंने मुख्तसर जवाब दिया। उन्होंने मेरे मुतल्लिक जानने की कोशिश की मगर मैंने अपने बारे में कुछ बताने से गुरेज किया। दोपहर के वक्त शाह साहब बेदार हो गए। सुनहरे ने इन्हें 10,000 और सोने चांदी का ताबीज दे दिया। शाह साहब ने इसी वक्त गाजी को तलब किया और इसे पैसे देकर कहा कि वो अमलियाती अशिया ला दे। गाजी 10 मिनट बाद वापस आ गया और सारा सामान थमाकर चला गया। शाह साहब ने तमाम अशिया को एक खास तरतीब से रखा। सोने चांदी के ताबीज पर इबारत लिखी और देसी घी का चिराग जलाकर सारी अशिया न जाने किस किस तरीके से सुलगाते रहे। लुबान, जायफल और खुशबूदार अशिया की धुनी से पूरे घर में निहायत मुस्कन और सहर अंगेज महक फैल गई। धुनी खत्म हो चुकी तो रियाज शाह ने कागज पर अजीब से रस्म अल-खत में कुछ लिखा और उनके कमरे के दरवाजे की चौखट के ऊपर कील की मदद से इन्हें ठोंक दिया। दोपहर का खाना खाने के बाद रियाज शाह ने इनसे इजाजत ली और हम लोग वापस मलकवार की तरफ चल दिए। रास्ते में मैंने इनसे वही सवाल पूछ लिया जो सुनहरे भट्टी के खदशा की सूरत में सामने आया था। क्या ये सारा खर्चा कराना जरूरी था? अब बहुत जरूरी था। मैं एक आमिल हूँ, तुम अच्छी तरह समझते हो। इतने महंगे तावीज धागे क्यों करते हैं? मैंने पूछा। जादू टोना और जिन्नात के सहरी असरात को खत्म करने के लिए ये अमल करना जरूरी होता है। बाज औकात तो इससे भी महंगे अमल करने पड़ते हैं। अगर मैं तुम्हें ये बता दूं तो तुम ज्यादा परेशान हो जाओगे। मैं तुम्हें एक वाकया सुनाता हूँ। आज से 30-35 साल पहले की बात है। मेरे बड़े भाई साहब ने ये केस किया था। तुम सुनोगे तो कभी यकीन नहीं करोगे। इस वक्त तक हम नहर की पटरी पर उतर गए थे। वहाँ से हमने टांगा ले लिया था और गांव की तरफ जा रहे थे। कुछ फासले पर मक्खन सिंह का डेरा था। मेरी सारी तवज्जो इस वाक़े को सुनने के लिए मरकूज थी। रियाज शाह कहने लगा, मैंने बताया है कि आज से 30-35 साल पहले पसरूर शहर में ये वाक़या पेश आया था। पसरूर में एक गवाले के घर पर जिन्नात ने कब्जा कर लिया था। उसके सारे जानवर इंसानों के हाथ से पानी पीने से गुरेज करने लगे थे। क्या तुम इस बात पे यकीन कर सकते हो कि कोई जानवर अपने घरों से पानी के नलके की हत्थी जलाकर पानी निकालने लग जाए?
नाकाबिले यकीन बात है, मैंने कहा, लेकिन ये हकीकत है। उस घर के सारे जानवर नल का खुद चलाकर पानी निकालते और पीते थे। इन लोगों ने दुनिया भर के आमिलों और पीरों से राब्ता किया था, मगर कोई भी इस घर से जिन्नात को नहीं निकाल सका था। वो लोग मेरे भाई के पास पहुंचे और वो बाबा जी सरकार के साथ पसरूर चले गए। बाबा जी ने उस घर के जानवरों पर मुसल्लत जिन्नात को मार मार कर भगा दिया था और आखिर में शेर की खाल, कस्तूरी और जाफरान की मदद से एक तावीज बनाकर उस घर में गाड़ दिया था। उस जमाने में शेर की खाल और कस्तूरी हासिल करना बहुत महंगा सौदा था, लेकिन बाबा जी सरकार की हिदायत पर यह सारा सामान हासिल कर लिया गया और फिर जब ये अमल करके तावीज बनाया गया तो उस घर पर फिर कभी जिन्नात नाजिल नहीं हुए। मेरे लिए ये वाकया बहुत भारी था और इसे हजम करना नामुमकिन था, लेकिन मैंने अब हिजरत करना छोड़ दी थी और इसीलिए ये सोचकर तस्लीम कर लिया था कि अगर मेरे सामने जिन्नात और बदरूह का ज़ुहूर हो रहा है तो ऐसा अनहोना वाकया भी इस सरजमीन पर रूनुमा हुआ होगा, क्योंकि जिन्नात से कुछ भेद नहीं है। मुमकिन है पसरूर शहर के रहने वाले पुराने लोगों को इस वाक़े का इल्म हो कि वही बेहतर जानते हैं कि इनके शहर में जब ये शहर एक बड़े कस्बे की शक्ल में था, वहाँ के किसी शख्स के साथ ये वाक़या पेश आया हो। हम जब मक्खन साईं के डेरे के पास से गुजर रहे थे कि कोचवा ने टांगा रोक लिया और फिर तेजी से नीचे उतर कर वो नहर की पटरी के पास रखे एक बड़े से मटके के पास गया। मटके के मुंह पर मिट्टी से लेप किया हुआ था और चूने से उसके ऊपर लिखा हुआ था, नजराना सरकार मक्खन साईं आस्ताना। कोचवान ने मटके के मुंह पर किए गए एक छोटे से सुराख में 2 रुपए डाले और कानों की लू को छूता हुआ मुंह में कुछ बुड़बुड़ाता हुआ टांगे पर आ बैठा। रियाज शाह ने मेरी तरफ देखा और कोचवान की इस हरकत पर खफीफ से अंदाज में मुस्कुराकर कहने लगा, ऐसे होते हैं अकीदतमंद। कोचवान ने सुना तो कहने लगा, जनाब लगता है आप परदेसी हैं, इसीलिए तो आपने नजराना नहीं डाला, वरना यहाँ के लोग जब तक रुपया 2 रुपया नहीं डाल देते इन्हें सुकून नहीं आता। आप नहीं जानते, हर जुमेरात को इस गल्ले से हासिल होने वाली रकम से न्याज तैयार होती है। लोग दूर दूर से न्याज हासिल करने आते हैं। क्या ख्याल है मक्खन साईं से मिलना लिया जाए? रियाज शाह मुझसे पूछने लगा। कोई हर्ज नहीं, लेकिन आप इन्हें जानते हैं? वो भी मुझे जानता है। रियाज शाह के लबों पर मुस्कुराहट गहरी हो गई। हमने टांगे वाले से कहा कि वो हमें मक्खन साईं के आस्ताने पर ले जाए। पहले तो उसने हैरानी से हमें देखा, फिर उसने टांगे का रुख आस्ताने की तरफ कर दिया। अभी हम रास्ते के सरगंडों से आगे बढ़े ही थे कि मुझे मक्खन साईं का मखसूस नारा मस्ताना सुनाई दिया। ऐसे लगा जैसे वो हमारे बहुत करीब हो, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं दिया। हम आस्ताने पर पहुंचे तो उस वक्त मक्खन साईं के मुरीदों का हजूम वहां इकट्ठा था। हम टांगे से उतरे और इनकी तरफ बढ़े तो मालूम हुआ कि मक्खन साईं कब्र में हैं और जब तक इनका चिल्ला पूरा नहीं होता वो कब्र से बाहर नहीं निकलेंगे। फिर तो हमें वापस चलना चाहिए, मैंने रियाज शाह से कहा तो वो मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोले, जब मक्खन साईं ने हमें खुद बुलाया है तो हमें इस तरह नहीं जाने देगा। मैं रियाज शाह का मुंह देखने लगा। हम दोनों मक्खन साईं के मुरीदों से हटकर एक चबूतरे पर बैठ गए। इस दौरान मक्खन साईं की कुटिया के अंदर से एक लड़की नंगे सर निहायत खस्ता हालत में रोती चिल्लाती हुई बाहर आई। उसके पीछे एक बूढ़ी औरत और बूढ़ा मर्द था। लड़की की हालत निहायत दिगरगों थी। लिबास अगरचा साफ था मगर जगह जगह से फटा हुआ था। इसे पकड़ो, दीवानी हो गई है, बूढ़ी औरत दहाई देने लगी। लड़की किसी छिलावे की तरह भाग रही थी। सारे मलंग मुरीद लड़की को पकड़ने के लिए उसकी तरफ लपके, मगर वो इनके हाथ से मछली की तरह फिसल फिसल जा रही थी। लेकिन कुछ देर बाद वो इसे पकड़ने में कामयाब हो गए। एक हट्टे कट्टे मलंग ने लड़की को उठाकर निहायत बेदर्दी से कब्र के पास फेंक दिया था। लड़की अजियतनाक अंदाज में चीखी। वो मुर्गी बिस्मिल की तरह कब्र की मिट्टी में तड़प रही थी। उसकी हालत देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया और मैं रियाज शाह की तरफ देखने लगा। रियाज शाह ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और फिर वो चबूतरे से नीचे उतरकर लड़की की तरफ बढ़ा। पीछे हट जाओ। रियाज शाह गुड़गदाल और पुरजलाल अंदाज में मलंगों और बूढ़ी औरत से मुखातिब हुआ तो वो सब उसका मुंह तकने लगे। हट्टा कट्टा मलंग रियाज शाह की आवाज सुनकर तैश में आ गया। 6 फुट कामत, कुसुरती बदन, चौड़ी छाती, नीम अरियां स्याह बालों से ढकी हुई थी। नथने और दहाना चौड़ा, पेशानी उभरी हुई, बाल लंबे और तेल में चपड़े हुए थे। वो मलंग नहीं, कोई छटा हुआ बदमाश लगता था। रियाज शाह उसकी तरफ बढ़ा तो वो आस्तीन चढ़ाता हुआ आगे बढ़ आया। उसकी मोटी मोटी कलाइयों पर कोहनियों तक कांसी और पत्थर के कड़े थे। हाथों की उंगलियां भी जवाहरात की भारी अंगूठियों से भरी हुई थीं। उसकी आंखों में अजीब सा नशा था और उनमें
सुरख दौड़े साफ नजर आ रहे थे। ऐसा गजबनाक और जलाली सूरत मलंग एक तस्वराती इंसानी हो सकता था। आंखों में खींच कर सुरमा डाला हुआ था। वजह कतार से लगता था कि वो अपने रूप बहरूप को संवारने के लिए खासा वक्त सिर्फ करता होगा। कौन हो तुम? वो जलाली लहजे में रियाज शाह से मुखातिब हुआ। हमारे आस्ताने पर हमें आंखें दिखाते हो, तुम्हें जुर्रत कैसे हो गई? रियाज शाह चेहरे मोहरे से एक आम सा शख्स ही लगता था। इस वक्त उसने जमनी अमामा से सर ढांप रखा था, जिससे जाहिर होता था कि ये शख्स मजहबी और मुत्तकी हो सकता है। लेकिन मलंग पर इसकी शख्सियत का कोई असर ना हुआ। उसके तेवर बताते थे कि वो रियाज शाह के साथ मार कुटाई से गुरेज नहीं करेगा। उधर लड़की मलंग की आवाज सुनकर ऐसी दहशत ज़्यादा हुई कि खुद अपने आप से लिपट गई। उस पर सख्तातारी हो गया। रियाज शाह के चेहरे पर किसी किस्म का खौफ नहीं था। वो मलंग की आंखों में आंखें डालकर तीखे अंदाज में बोला, ओए शर्म नहीं आती? एक मासूम सी लड़की को मारते हो, इंसान हो या दरिंदे? रियाज शाह की बात सुनकर खुद मुझे एक लम्हे के लिए हैरत हुई। एक मजलूम लड़की की खातिर वो लड़ाई करने पर उतर आया था। मेरी नजर में तो वो भी दरिंदा था। न जाने उसने कितनी लड़कियों को दरिंदगी का निशाना बनाया था। आज उसकी जुबानी ऐसे अल्फाज सुनकर मुझे हैरत हुई, लेकिन हैरत से ज्यादा अब खुशी हो रही थी कि बहरहाल वो जैसा भी था, एक लड़की की इज्जत और नामूस की खातिर इन मलंगों से लड़ने पर आमादा था। मलंग रियाज शाह की बात सुनकर तब गया। उसने मुंह की बजाय हाथों से बात शुरू कर दी और अपना भारी भरकम हाथ रियाज शाह की गिरबान पर जमा दिया तो उसकी कोहनियों तक कड़े खनखनाने लगे। एक अजीब से जल तरंग पैदा हुआ था। तुझे बताता हूँ मैं इंसान हूँ या दरिंदा, बड़ा आया शर्म दिलाने वाला। तेरी मासी की धी लगती है, मामा लगता है तू इसका। उसने रियाज शाह को गिरबान से पकड़कर झटका दिया तो वो लड़खड़ा गया। गिरबान छोड़ दे मेरा, वरना तेरा हशर नशर कर दूंगा। रियाज शाह ने उसकी आंखों में देखते हुए अपने हाथ से गिरबान छुड़ाने की बेसुध कोशिश की। बात तू ऐसे कर रहा है जैसे कच्चा खा जाएगा। ले, हिम्मत है तो गिरबान छुड़ाकर देख। ये कहकर मलंग ने इस्तेज़ाइया अंदाज में अपने मलंग साथियों की तरफ देखा। ओए कोई माइका लाल है जो अच्छू खां मलंग की पकड़ तोड़ सके? अच्छू खां मलंग नाम सुनते ही मेरे ज़ेह में झमाका सा हुआ। अगर वो वाकई अच्छू खां ही था तो उसका डेल डोल उस पर ही जचता था। बरसों पहले इस नाम का एक डकैत गुजरा था, इंतहाई सफाक और ताकतवर। सुना था कि वो किसी पुलिस मुकाबले में मारा गया था। कोई कहता था कि वो इलाका बदर हो गया था, लेकिन आज बरसों बाद वो मक्खन सिंह के डेरे पर नजर आ रहा था और एक मलंग के रूप में। उसके चेहरे की सफाकी और दरिंदगी उस बात की खमास थी कि वो अच्छू डकैत ही हो सकता है। मेरा ख्याल था कि रियाज शाह उसकी असलियत से आगाह नहीं होगा। अगर तू अच्छू खां डकैत है तो ये जान ले कि अब तेरी मौत आने वाली है। मेरा गिरेबान पकड़कर तूने बहुत बड़ी गलती की है। रियाज शाह मेरी तवक्का के बरअक्स इसे जानता था और मेरे लिए हैरत की दूसरी बात थी। हाँ, मैं अच्छू खां डकैत ही था, लेकिन अब मक्खन सिंह का मलंग हूँ, उसने कहा। एक मलंग और डकैत में फर्क देख लिया तूने। अगर तूने अच्छू खां डकैत को ललकारा होता तो मेरी बंदूक की गोली तेरी बात का जवाब देती, लेकिन क्या करें, अब अच्छू खां मलंग हो चुका है, मजबूरी ने रोक रखा है। तू मलंग नहीं, अब भी डकैत ही लगता है, रियाज शाह ने किसी घबराहट के बगैर कहा। मलंग ऐसे होते हैं? तू सांड है, अब भी लोगों को लूटता है, बेरहमी से पेश आता है। इस बेचारी ने तेरा क्या बिगाड़ा था जो इसे यूं उठा उठा कर नीचे मारा है? तू वैशी था अच्छू, अब भी तो वैशी है। ओए जुबान बंद कर, रब सोने की कसम तेरी जुबान काट डालूंगा, अच्छू खां धारते हुए बोला। इस दौरान मैंने महसूस किया कि रियाज शाह के चेहरे का रंग तब्दील हो रहा था। उसकी पेशानी की लकीरें तन गईं और नथने फूलने लगे। इससे कबल के मलंग कुछ और कहता, रियाज शाह ने गिरबान पर काबिज हाथ पर हाथ रखा और दूसरे हाथ से जोर से उसके मुंह पर थप्पड़ मारा कि वो किसी जख्मी भैंसे की तरह डगराता हुआ, कलबाजियां खाता हुआ कई फुट दूर जा गिरा।